Protecting yourself is not the least thing you can do, but the least thing you can do is to maintain your circle. Hey guys, this side your Amit, and this video is about what kind of peoples you should absolutely stay away. दूर हटो. चल. ऐसे. Okay. So, fifth number पे ऐसे लोग आते हैं. खा लिया मेरे शरीर में ताकत आ गया. Okay, so fifth number पे आते हैं ऐसे लोग the most unhappiest. इनसे बड़ा झाटू इंसान आप लोगों ने इस जिंदगी में नहीं देखा होगा. So, people like them are the most unhappiest in every unpredictable situations. जो लोग कभी अच्छे पल को with their bad intentions, emotions, unneeded sensitivity इन सब चीज़ों के कारण खराब कर देते हैं. Always stay away from these people because aura के लोग आपका कर देते हैं. So because you do not want to, because you do not need any negativity around yourself. So yes, just make these people's yes simple. Because मैं अपने आसपास को भी अनहैप्पी इंसान को नहीं झेल सकता. Because if you are unhappy at the moment, if you are not grateful for the moment, then you can't even be more grateful in the future also to have me. यस, बिकॉज़ तुम एक मोमेंट पे अगर उस मोमेंट पे कुछ भी सिचुएशन को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, सो व्हाई कुड आई बी केयर फॉर यू? व्हाई शुड आई बी केयर फॉर यू? ग्रामर मिस्टेक, मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी, सो होता है. सो फोर्थ नंबर पे आते हैं द मोस्ट सेंसिटिव इंसान. सेंसिटिव मतलब जिन्हें हर एक बात का बुरा लग जाता है. People who take words to their heart, because it's not a bad thing to take words to your heart, because heart is a very sensitive thing. So लेकिन I'm talking about those kind of people who are so insensitive towards other people and being insensitive towards when they get involved in some things. मतलब इनसेंसिटिव वो किसी और को भी कर देते हैं, लेकिन जब उनको कुछ चीजें बुरी लग जाती है तो वो खुद भी सेंसिटिव हो जाते हैं. So this kind of people like hypocrites, okay, which do not care for others happiness, others comfortness. Yes, so stay away from insensitive people. So stay away from sensitive people who are very sensitive in every other situations. Because अगर तुम रो भी रहे होगे, they would even care for तू मेरे पास क्यों रो रहा है. Simple, ठीक है. And the third people you should stay away from. मजाक कर रहा हूँ. Okay, so the third people you should absolutely stay away from जो chips नहीं खाते हैं. And the third people you should stay away from are the absentees. जो तुम्हारे हर एक सिचुएशन में एब्सेंट रहते हैं, तुम्हारे हर पल में, हैप्पीनेस में, सैड सिचुएशन में, ड्रामेटिक सिचुएशन में, बहुत जब तुम्हारी जिंदगी में कांड पड़े हुए हो तब सिचुएशंस में. बिकॉज या कोई हैप्पी सिचुएशन में भी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग एनी प्राइज इन और अवार्ड इन द स्टेज और समथिंग, और ऐसे सिचुएशन में इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ पीपल्स who never wow मैं कितने इंग्लिश who never count you, who are never there for to record your moments, your birthday parties, your cafe, your good aesthetic photos, but will definitely call you in their own situations when they need help, जब उनको नीड है ज़रूरत की. सो ऐसे लोगों से दूर रहो जिनको कोई लेना देना नहीं तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही उनसे. एंड एंड जो चिप्स नहीं खाते उनसे तो दूर ही रहो. सो द सेकंड kind of people who you should stay away is from self-obsessed people. See, I'm a self-obsessed. Okay, but I'm not that self-obsessed. If somebody near to me needs my help and I would be bragging कि मेरे पास ये चीजें हैं, and I do not care for yourself what you are lacking to. तेरे पास जो चीजें नहीं है उसके लिए तू इमोशनल हो, मैं नहीं होऊंगा. I would be a decent and a pleasant friend. I literally nothing hates more than a decent pleasant friend, because you should be a romantic friend and you should help, of course. मतलब जिनके घर मकानों शीशे के बने होते हैं, वो किसी के घर जाकर टूटे हुए शीशों के घर में जाकर अपने मकानों की अच्छाइयाँ नहीं बताते हैं. सिंपल, दैट्स अ सिचुएशन. सो you should stay away from people who don't have any urgency toward the situation. Side.
ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना हो या कहीं और तुम्हें जाना हो, या यू शुड एंजॉय एनी मोमेंट, या तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें लाइफ में कुछ रिबेलियस करना है, कहीं घूमने जाता हूँ, ट्रैक एडवेंचर ट्रिप vacation or anything, and this kind of the people who will make objection in your life every possible sense, and you should absolutely stay away from this kind of peoples because उनके पास खुद एक ऑब्जेक्शन होता है कुछ चीजें ना करने के लिए, एंड दे विल डेफिनेटली ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, एंड यू वुड डेफिनेटली बिकॉज कुछ चीजें हमारे यहाँ घुस जाती है। सो दूर चल ऐसे करना है। ऐसा मार। एंड द लास्ट थिंग इज द एनर्जी ड्रेनर। भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। द पीपल्स हु ड्रेन योर एनर्जी, who drain your positive energies, just stay away from this kind of people because एनर्जी ड्रेन करना मतलब जिनसे आपको बात करने में बहुत ड्रेन आउट फील होता हो, बहुत बहुत ज्यादा ड्रेन मतलब उनसे बात करने के बाद यू डू नॉट हैव एनी एनर्जी टू इवन टॉक टू एनीवन, टू डू एनीथिंग। सिंपल सी चीज है। एनर्जी ड्रेन होता हुआ कैसे आपको पता चलेगा? इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड उनकी थिंकिंग, उनका ओपिनियंस, उनसे बात करने के दौर पे अगर आपको पता चलता है दिस इज सो भड़वा टाइप एंड दिस इज सो ड्रेन्ड आउट गाय, काइंड ऑफ अ गाय और अ पर्सन, एनीवन, अंकल स्पेशली फॉर मी, ओके। सो उनसे बात करने में, उनके ओपिनियंस को लड़ते रहने में, ऐसे लोगों से आपका एनर्जी ही ड्रेन्ड आउट होगा। सो डू नॉट टॉक बैक टू देम, सिंपल। और मोर ओवर आप जितना अपने आप को एक्सप्लेन करोगे द पर्सन विल बी हैज रिमोट हैज ही वाज बिफोर, नो चेंज एट ऑल। तो अपना एनर्जी ड्रेन ही मत करो ऐसे लोगों से, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम एंड जस्ट कीप योर सर्कल पीसफुल। कुछ ना होने से अच्छा है। हाँ, कुछ बुरा होने से अच्छा है कुछ ना होना ही, सिंपल, समझे? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय ज्ञान, लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी, और और क्या, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो। ओके बाय, लव यू। अपना थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है?